here. We've done the last chapter we discussed was organizing, and you all are aware of the functions of management. And after organizing, staffing comes. Now, if you remember from the previous chapter videos also, so if you remember from the previous videos of nature of management, when I discussed the meaning briefly there of what is staffing. Now, staffing में there is the word staff. In an organization, if I ask you what is staff, क्या समझ आता है बेटा आपको? Just type in the chat box quickly. कौन है? There are people working in the organization. So staff का मतलब है the human element of any organization. And when I say what is staffing, it is finding the right person for the right job in an organization. Now, staffing में आ रहा है staff. तो staff मैंने बोला वो people in the organization की बात हो रही है. और organization में when you need to find the right person for the right job, जिसको job right है. For example, in a school, for example, economics subject पढ़ाने के लिए, right job के लिए, I need a right person. I need MA in economics. एक company में, if I need a HR manager, the job is HR manager. So I will need a right person, a person with degree in management, HR जिसका specialization हो, that person would suit for that job. So the staffing function of the management will be concerned with finding the right person for the right job. If it is clear up till now, just quickly type yes and discuss the definition of staffing. Staffing is concerned with obtaining, utilizing, and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स क्या है? जो भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड इट्स वर्कफोर्स. सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स? Can you find out the minute difference between the two terms here? That we have to maintain a satisfactory workforce on the one hand and also a satisfied workforce. If somebody can, then quickly type. We have to just keep with the rules and we have to maintain a workforce, but satisfied workforce means satisfaction of the employees in our company. Very good. So, thank you, beta. Ishita is correct. Now, I'm going to explain you further. बोल रहे. For example, एक organization में 10 employee काम कर सकते हैं. 10 लोगों की जरूरत है. Then, if we have 10 competent people working for the organization, we are saying that we are maintaining a satisfactory workforce. जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए जितना वर्कफोर्स चाहिए उतना ही कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रख रहा है, देन द ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स. सो द टर्म सैटिस्फैक्टरी हियर इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. बट व्हेन आई से मेंटेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स, उसका मतलब है वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉइज कि द वर्कफोर्स शुड बी हैप्पी. The workforce, the employees who are working, they should also be satisfied. अब employees कब satisfied होंगे? Quickly type in the chat box. Incentives मिलने चाहिए. Very good, everybody. So by offering all these, you can maintain a satisfied workforce. तो अब दोबारा staffing, good रमन. अब दोबारा हम बेटा staffing की definition देखते हैं. Staffing is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. पहला एलिमेंट है ऑब्टेनिंग द वर्कफोर्स. ऑब्टेनिंग मतलब जितने लोगों को और चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 लोगों की जगह थी, 8 आर ऑलरेडी वर्किंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे 2 और चाहिए. सो ऑब्टेनिंग दिस वर्कफोर्स, 2 एम्प्लॉय को और हायर करना, दिस इज ऑल्सो स्टाफिंग. एवरीबडी एल्स प्लीज म्यूट योर सेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट बेटा, बीच में डिस्टर्बेंस आती है. हाँ जी. Then utilizing the workforce. Utilizing the workforce से क्या मतलब है? जो भी employees organization में है वो बेस्ट अपना एफर्ट दे, उनको मैनेज करना. अगर एम्प्लॉय सैड है, एम्प्लॉय छुट्टियां ज्यादा ले रहा है, तो स्टाफिंग फंक्शन विल लुक आफ्टर दैट द एम्प्लॉय इज यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक है बेटा. और लास्ट एलिमेंट क्या है? मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो क्विकली टेक 1 मिनट और माइंड में बेटा ये डेफिनेशन फीड कर लो, जल्दी से याद करने की कोशिश करो. कंसर्न्ड विथ 3 things: obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. जो डेफिनेशन याद कर लेगा, आई एम गिविंग यू 1 minute exactly. टाइप आई अल्फाबेट इन द चैट बॉक्स. Yes, ma'am. हाँ जी, जल्दी से डेफिनेशन सुना दे आंखें बंद करके.
Staffing is concerned with obtaining, utilizing, and maintaining a satisfactory and satisfied workplace. वर्कफोर्स वेरी गुड. अब हर्ष ने एक गलती क्या करी. ओके समृद्धि, आई गेट बैक टू यू. थैंक यू हर्ष, वेरी गुड. वर्क प्लेस बोला. वर्क प्लेस क्या होता है? जहां पे एम्प्लॉइज काम करते हैं, एम्प्लॉइज के काम करने की जगह. और वर्क फोर्स क्या होती है? हम एम्प्लॉय की ही बात कर रहे हैं बेटा. समृद्धि, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन बेटा? आई मिस्ड योर टेक्स्ट. क्विकली राइट अगेन. ओके, लिसन टू मी अटेंटिवली. स्टाफिंग में वर्ड था स्टाफ. तो स्टाफ हमने बोला द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो द स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफ मतलब ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो स्टाफिंग है उसका मतलब है ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. So by obtaining the workforce we mean hiring people. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे एम्प्लॉइज 10 की जगह है एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट एट प्रेजेंट ओनली 8 आर वर्किंग, तो मुझे 2 लोगों को और हायर करना पड़ेगा. हायर का मतलब क्या है? मुझे और इंटरव्यू कंडक्ट करने पड़ेंगे और 2 लोगों को जॉब ऑफर करना पड़ेगा. तो ये काम भी स्टाफिंग के अंदर आता है. देन यूटिलाइजिंग द वर्कफोर्स. अगर वर्कफोर्स फॉर एग्जांपल डीमोटिवेटेड है, वो काम अच्छे से नहीं करेगी, तो मुझे उनको मोटिवेट करना है वर्कफोर्स को, ताकि मैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकूं, उनका फुल पोटेंशियल यूज कर सकूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. तो वर्कफोर्स को मैनेज करने का भी जो फंक्शन है वो भी स्टाफिंग परफॉर्म करेगा. एंड देन मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स विल आल्सो कम अंडर स्टाफिंग. मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स का क्या मतलब है? जितने मुझे लोगों की जरूरत है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी वर्कफोर्स की जरूरत है, दैट शुड बी अवेलेबल विद मी. इफ आई नीड 10 people, I should have 10 people. Okay beta, and 10 competent people in my organization. And by maintaining satisfied workforce means कि मेरे जितनी भी workforce काम करिए, they should be satisfied, they should be happy working in my organization. Why? Because then only they will contribute their best efforts in my organization. So staffing basically revolves around the human element of the ऑर्गेनाइजेशन. आपने उनको ऑब्टेन भी करना है, यूटिलाइज भी करना है और मेंटेन करना है एक सैटिस्फैक्टरी एंड सैटिस्फाइड वर्कफोर्स. सो आई होप आई वाज क्लियर नाउ समृद्धि. Okay, beta. So let's move further. Now, do you think that staffing is related to organizing? Just think for a minute. Do you think that staffing is related to organizing? There's one diagram here on your right hand side. देखो बेटा, कुछ लग रहा है ऑर्गेनाइजिंग से थोड़ा सा याद आ रहा है. ये डायग्राम हमने वहां पे भी कहीं पे पढ़ा है. Okay, Vanshika, quickly unmute yourself, beta. How can staffing be related to organizing? Just explain in your own words. हम स्टाफिंग में हमने जो जॉब्स क्रिएट, वी आर गिविंग द ह्यूमन रिसोर्स फॉर दैट. Okay. बेटा थोड़ा सा unclarity. Piyush, would you like to explain? Unmute yourself and let me know. Piyush 12C. हाँ जी बेटा. मैम जो ऑर्गेनाइजिंग में हम मैम ग्रुप्स बनाते हैं, अथॉरिटीज बनाते हैं एक टास्क के लिए, उसके लिए हमें मैम प्रॉपर वर्कफोर्स चाहिए होती है, उसके लिए हम स्टाफिंग. वेरी गुड. थोड़ा सा पीयूष ने करेक्ट बोला, बस वो टर्म नहीं निकाल पाया. द टर्म इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आपने ऑर्गेनाइज, थैंक यू पीयूष, यू कैन म्यूट योरसेल्फ बेटा. आपने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था. वो स्ट्रक्चर क्या फायदे का है अगर उस स्ट्रक्चर में आप एम्प्लॉयज ही नहीं फिल करेंगे? आपने बना दिया ये स्ट्रक्चर जो फॉर एग्जांपल इस स्लाइड पे आपको नीचे बेटा राइट हैंड साइड पे दिख रहा है. मैंने ये बना लिया कि मुझे टॉप पे एक इंसान चाहिए, देन आई नीड 2 beneath her एंड देन आई नीड 5 people वर्किंग अंडर देम. तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना लिया कि मुझे ये लेवल पे इतने लोग चाहिए.
बट अगर एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स ही नहीं होगा, तो इस स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं. सो हाउ इज स्टाफिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए यू नीड द स्टाफिंग फंक्शन. आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, दैट इज ऑब्टेन करने पड़ेंगे. ऑब्टेन कर लिया तो यूटिलाइज भी करने पड़ेंगे. और इस स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो जो लोग काम कर रहे हैं, you have to ensure that they are satisfied and also they're competent for the organization. So is the relation between staffing and organizing clear? If anybody wants me to repeat quickly, type repeat in the chat box. Okay, Arun, listen to me quickly. Okay, Shita, pay attention. ऑर्गेनाइजिंग में बेटा चैप्टर में आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सीखा था. क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? द हायरार्की ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, या द हायरार्की ऑफ जॉब्स, कि कौन ऊपर अथॉरिटी में, फिर कौन उसके नीचे काम करेगा, फिर कौन उसके अंडर काम करेगा, एक्सेट्रा. तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक मियर स्ट्रक्चर है पेन पेपर का, जो आपने बना के रख लिया. मुझे अपनी कंपनी में या अपने फर्म में इस लेवल पे इतने लोग चाहिए. दैट इज मियरली ऑन पेपर कि मैंने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन का. बट वो स्ट्रक्चर में मुझे वर्कफोर्स तो बेटा डालना पड़ेगा ना. मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे अगर मेरे पास नहीं है, और अगर है लोग, मुझे उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा. मैंने मोटिवेशन का एक टर्म बोला था. तो स्टाफिंग फंक्शन कैसे रिलेटेड है ऑर्गेनाइजिंग से? ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना सीखा. स्टाफिंग में हम इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो एम्प्टी सीट्स होंगी इनको फिलअप करेंगे और अपने वर्कफोर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे. इज इट क्लियर नाउ? Okay, so how is staffing related to organizing? Because staffing fills the organizational structure. Okay, beta, we will hire people, we will fill up these positions in that organizational structure using the human resource, and then we will train them to utilize them better and also motivate those people to work. Now, one more thing. अभी जिन जिन बच्चों को स्टाफिंग की डेफिनेशन में या ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही है, इस चैप्टर के एंड तक ये बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. क्योंकि जब आप आगे स्टाफिंग के एलिमेंट्स पढ़ लेंगे तो ना आपको डेफिनेशन रटनी पड़ेगी, ना आपको ये ऑर्गेनाइजिंग से उसका लिंक रटना पड़ेगा. बहुत ही क्लियर हो जाएगा. अभी आपने सिर्फ क्या सीखा है? हाउ इज स्टाफिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग? बिकॉज स्टाफिंग fills the organizational structure. Organizational structure basically सिर्फ एक बेटा स्ट्रक्चर, एक ढांचा था जो आपने पेन पेपर से बना के रख लिया. मुझे इतने लेवल चाहिए, ये अथॉरिटी पे होगा, ये पोजीशन यहाँ पे होगी, अंडर दैट 5 people will be working, etc. Staffing will fill that organizational structure. उतने लोगों को हम मेंटेन करेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर. So I hope this was clear to you now. Let's move on further. Okay, so the next slide says staffing function is needed in both new and existing organization. तो स्टाफिंग का फंक्शन नई ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए और एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए. नई ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चाहिए? आपने फॉर एग्जांपल बेटा नया एक बिजनेस स्टार्ट करा है. सबसे पहले आपने प्लानिंग करा होगा, प्लानिंग के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग करा होगा, ऑर्गेनाइजिंग में आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो आपको अब नए लोग हायर करने हैं. तो स्टाफिंग एलिमेंट ही तो वो एलिमेंट है जो लोगों से डील करता है, द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो नई ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर यू हैव परफॉर्म द प्लानिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यू विल परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन. व्हाई? To fulfill the needs or the requirements of the enterprise, that is to hire more people in your organization. So is it clear for the new organization? Quickly type in the chat box. हाँ जी, तो नई ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग चाहिए होगा. यस, चाहिए होगा. क्यों? आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यू विल परफॉर्म द नेक्स्ट फंक्शन, स्टाफिंग. अब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का बिजनेस, या फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी का फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म होगा? यस, होगा. क्यों? बिकॉज देयर विल बी सम एम्प्लॉयज हु विल लीव द जॉब. कुछ एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे, तो वहां पे वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो सीट है वो एम्प्टी हो जाएगी. यू विल नीड टू हायर मोर पीपल, मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई?
फॉर एग्जाम्पल पहले योर बिजनेस वॉज ओनली डीलिंग इन 2 सेगमेंट्स, अब आपने एक नया सेगमेंट और डाल दिया. पहले आप सिर्फ फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कॉस्मेटिक्स में और बैग्स में डील करते थे, अब आपने थर्ड क्लोथिंग सेगमेंट और डाल दिया अपने बिजनेस में. तो ये जो नया सेगमेंट आया है आपके बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उसके लिए न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड. देन अगेन यू विल नीड टू हायर मोर पीपल, स्टाफिंग फंक्शन विल कम इन टू प्ले. So, will staffing be required in the existing organization? Yes. There are 2 reasons for that. Pehla, if your business grows, new jobs will be created in the business. Or secondly, if the existing employees leave, then also empty seats will have to be filled up by staffing function. So I hope this slide was clear to you. Anybody wants me to repeat quickly? Type repeat in the chat box. Okay, so staffing is yes required in both new and existing organization. Let's move on to the next slide. Importance of staffing. Importance of staffing में पहला point is obtaining competent personnel. What do you mean by personnel? What do you mean by personnel? Quickly type in the chat box. The human resource. Very good, Jasleen. Very good, Kumkum. Yes, the staff, the employees that are working in the organization. So what is the importance of staffing function? With the help of staffing function, we can obtain the competent personnel. आपने staffing की definition में पढ़ा था obtaining the workforce, तो ये इसका importance है. With the help of staffing function, we can hire more competent people in our organization. Then second is higher performance. Better by putting the right person in the right job. जिसकी जो job है, अगर मैं उस person को वो job allocate कर दूं एक organization में, obviously there will be higher performance and productivity in the organization. For example, बेटा एक organization में एक छोटे level पे एक organization है या factory है. एक वहाँ पे जो for example there's a person named for example Mr. Y. तो मिस्टर वाई जो है वो HR मैनेजर की डिग्री लेके आया हुआ है. ही हैज डन मैनेजमेंट कोर्स विद स्पेशलाइजेशन इन HR. अब उस फैक्ट्री में ही वाज अ न्यूबी, अभी तक उसे एक्सपीरियंस कहीं और नहीं था. उस फैक्ट्री में उसको प्रोडक्शन का इंचार्ज लगा दिया. सो डू यू थिंक ही विल बी एबल टू परफॉर्म देयर बेटर? व्हाट विल हैपन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन? यूज द चैट बॉक्स. लॉस होगा. वेरी गुड. परफॉर्मेंस ही नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने राइट पर्सन को राइट जॉब नहीं दिया. तो स्टाफिंग फंक्शन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, हमने पहली स्लाइड में ही क्या पढ़ा था, इट इज कंसर्न्ड विद पुटिंग द राइट पर्सन in the right job. Yes, all of you are correct, all those who are writing in the chat box. So staffing function will ensure higher performance. Now the next is continuous growth. Staffing function, क्योंकि आपने सही employee, competent employee को competent job पे रखा हुआ है, there will be growth in your organization. Your organization will be able to survive. Just think of that factory जिसमें HR manager की डिग्री वाले को production in charge लगा दिया. वहां पे there will be no growth, बेटा, there will be no survival. It will be very difficult for that organization to survive. So the next point is optimum utilization of human resource. So, like I said, staffing function is concerned with the human element of the organization, the human resource of the organization. It is also concerned with optimum utilization of that human element. ये हमने definition में भी पढ़ा था, utilizing the workforce. वही point यहाँ पे आ रहा है. Okay, so let us consider 2 scenarios. Pehla, where there is understaffing, and second, where there is overstaffing. Now, Lavanya, quickly unmute yourself, beta. Lavanya, 12C. Yes, ma'am. Anji, how are you, beta? I am good, ma'am. How are you? I'm also fine. Okay, now tell me what will happen in an organization if it is understaffed. Do you understand what is understaffed? Yes, ma'am. Anji, what will happen? मैम अगर जितने बंदे रिक्वायर्ड हैं एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की, उससे अगर कम होंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से पहली बार काम नहीं कर पाएगी और Very good. मैनेजमेंट कम होगी और उससे फिर लॉस होगा. Okay. Very good, Lavanya. Thank you. Anybody else who would like to add? Beta, understaffed होगा तो organization में क्या होगा? Quickly type alphabet I in the chat box.
Okay, Saksham Sharma, quickly unmute yourself. Saksham Sharma, quickly unmute yourself, beta. मैम हाँ जी बेटा, क्या होगा अगर अंडरस्टाफ्ड हेलो होगा तो ऑर्गेनाइजेशन? मैम जो कैपिटल रिसोर्सेज होंगे वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं होंगे. Okay, very good. Also, Lavanya and Saksham both are correct in some manner. Understaffed होने से, thank you Saksham, you can mute yourself. Thank you बेटा. Understaffed होने से क्या होगा? आपको 10 लोग चाहिए काम करने के लिए, but only 5 are employed. आपके टारगेट्स ही मीट नहीं होंगे. आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो उन लोगों का, और जो बाकी के 5 लोग हैं उनका क्या होगा? उन पे बर्डन आ जाएगा काम करने का. They will be dissatisfied. सो स्टाफिंग की डेफिनेशन में ही क्या था? वेरी गुड सानिया, यू आर राइट. स्टाफिंग की डेफिनेशन में क्या था? मेंटेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड होगा, क्या सैटिस्फाइड वर्कफोर्स होगा? नो, दे विल बी ओवरबर्डन्ड. ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क गोल्स विल नॉट बी अचीव्ड इन टाइम, क्योंकि 10 लोगों का काम 5 लोग नहीं कर सकते. Now let us consider a round-wise scenario where there is overstaffing. So let's see who wants to try this. Type alphabet I in the chat box. Overstaffing होगा तब क्या होगा? Overstaffing का मतलब है बेटा 10 लोगों की जरूरत है और फॉर एग्जाम्पल 15 आर वर्किंग. अरुण, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा क्विकली. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा, होप यू आर डूइंग वेल. जल्दी से बताओ, ओवरस्टाफिंग होगा तो क्या होगा? मैम अगर हम ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड हो गए तो मैम कुछ पीपल मैम वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे और मैम कंफ्लिक्ट हो सकता है इसकी वजह से. ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा. अगर ओवर स्टाफिंग हुआ तो उसने बिल्कुल ठीक बोला अरुण ने, कुछ लोग आइडियल बैठे रहेंगे. बेटा यू कैन म्यूट योरसेल्फ अगेन. कुछ लोग आइडियल बैठे रहेंगे, उनके पास काम नहीं होगा, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा. वी आर इन अ वे वेस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स. हम सिर्फ बेटा मनी या फिजिकल रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते, हम ह्यूमन रिसोर्स को भी वेस्ट कर सकते हैं. कैसे? आपने 10 लोगों की जगह पे 15 को हायर करा हुआ है, तो बाकी जो 5 की जो कैपेसिटी थी दैट इज बीइंग वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. So staffing function will ensure that there is optimum utilization of the human resources. There is no understaffing and there is no overstaffing in the organization. I hope this was clear. तो जितने लोग हैं उतने ही होंगे. क्यों? क्योंकि then only they can optimally utilize the human resource. So I hope this point was clear. The last point is staffing improves job satisfaction. Now, this is also coming from the definition somewhere. Anybody who would like to explain quickly, type alphabet I in the chat box. Okay, Jasleen, you can unmute yourself, beta. Jasleen, 12C. Okay, I cannot hear Jasleen. Let's Kumkum, beta, it's your turn now. Quickly unmute yourself and let me know. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, क्या लगता है आपको स्टाफिंग इंप्रूव कर सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन? Ma'am, if right people would not be there in the right job, then the employees wouldn't be satisfied. ओके बेटा, वेरी गुड, यू हैव गिवन अस अ न्यू पर्सपेक्टिव. अगर आपने राइट पीपल को राइट जॉब पे नहीं रखा, फॉर एग्जांपल दैट एचआर मैनेजर, अगर उसको प्रोडक्शन में काम करना पड़े, ही वुड ऑब्वियसली बी डिससैटिस्फाइड. वो खुश नहीं होगा उस जॉब में एंड ही वुड लाइक टू स्विच फ्रॉम दैट जॉब. सो स्टाफिंग फंक्शन विल एंश्योर दैट योर पीपल आर सैटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय पुटिंग देम इन द राइट जॉब. एनीबडी एल्स? बेटा आपने डेफिनेशन में कुछ एग्जाम्पल दिए थे by maintaining a satisfied workforce कि हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या वो जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड नहीं है? Anybody would like to add something to it? Type alphabet I. Yes, Mokshika is right. Very good. फेयर वेजेस देके, बोनस देके, सैलरी देके, आप सबने ये एग्जाम्पल्स पहले दिए थे, गुड वर्किंग कंडीशन देके, अगर ये सब आप प्रोवाइड करोगे, yes, it will improve the job satisfaction of the employees. So किसी भी पॉइंट में कोई भी अगर बेटा कंफ्यूजन है, क्विकली टाइप दैट पॉइंट नंबर इन द चैट बॉक्स.
Sania, you're right, beta. Okay, so doubt नहीं है किसी भी बच्चे को? Do you want me to continue one more topic? Type yes or no in the chat box.